Hello everyone, welcome you back in this physics video, and in today's video we are going to learn how to find out the magnetic field inside the solenoid by using of ampere circuital law. So let us know first about that what is this solenoid. So solenoid, as all we have observed the shape of a spring. So in spring we are getting over there the large number of turns of the wire which are closely packed. Okay, so in which you will find that the length of the spring is much more as compared to its diameter. So therefore this spring shape over here, this is solenoid. So solenoid is what? A cylindrical coil of many tightly bound by turns of insulated wire, of which diameter of the coil smaller than its length. Okay, now if the current will be passed from this solenoid, so then it will start to produce magnetic field, because the current carrying coil produces magnetic field. Okay, so over there each turn over here that we can take them as a single circular coil. तो जितने जो भी each turns यहाँ पर हैं उनको एक हम individual circular coil consider कर सकते हैं, and when the current passes through them, so they produces magnetic field. So the total magnetic field of this solenoid will be the sum of all the magnetic field due to this circular coil, which is due to of each turn. Okay, now let us to know that the direction of this magnetic field because of solenoid. So for this purpose we are going to use this ampere right hand rule. Okay, so as we are looking over here, जो back side of the wire, it is shown with the dotted line. Back side it is shown with the dotted line, and front side of the wire it is darken over here. Okay, so as the current is going to pass from this left side, so through the dotted line it goes downward, and the front side it comes up, and then it goes to the next turn again to the back side in downward, and to the front in upward. So similarly in every turn I have shown this that direction of current. Okay, now according to ampere right hand rule, that you have to hold this solenoid in your right hand palm. Okay, in your right hand palm you have to hold this solenoid in such a way that the current in the coils that is pointed by your fingertip. Okay, so how you have to hold this solenoid, that your fingertip must be in the direction of the current. Okay, so then the thumb, the direction in which it will be, it will give us north polarity. ठीक है, तो क्या बताया गया है इसमें कि जिस तरफ करंट की डायरेक्शन है, आपकी फिंगर जो है उस करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करती हो, तो जो थंब होगा वो नॉर्थ पोल बताएगा. ठीक है, सो ओवर हेयर वी आर गेटिंग, ये जो सॉलिनॉइड है अगर हम इसको इस तरह से पिक करते हैं, क्योंकि इसमें करंट अपवर्ड है, तो इसलिए हमारी फिंगर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं. ठीक है, तो इसलिए व्हेन वी आर होल्डिंग इट, जब इसको ग्रिप करेंगे तो नॉर्थ पोल किस तरफ जा रहा है, टुवर्ड लेफ्ट जा रहा है. ठीक है, तो इसलिए ये बना नॉर्थ पोल, एंड दिस विल बी द साउथ पोल. ओके, सिमिलरली ओवर देयर इफ वी विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करें, सो वी विल फाइंड फ्रंट साइड को डार्क लाइन, बैक साइड जो है वो डॉटेड से शो की गई. सो वी विल फाइंड करंट यहाँ से आएगा तो फ्रंट से डाउनवर्ड हो जाएगा. ठीक है, और बैक से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा करंट. सो इन दिस वे दैट द करंट इन एवरी turn I have shown. Okay, so this is the direction of the current. Now what will be the magnetic field direction? ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी. ठीक है, सो देयरफॉर वी विल से ओवर हियर जो करंट की डायरेक्शन है दैट इज गिवन बाय द फिंगर टिप्स. ओके, तो इसको इस तरह से होल्ड करो कि फिंगर टिप जो है वो करंट की डायरेक्शन में हो. सो दिस थंब विल गिव यू द दैट नॉर्थ पोलैरिटी. तो इसलिए नॉर्थ पोलैरिटी हमारे पास राइट साइड को चली जाती है. दिस इज नॉर्थ पोल. इफ दिस इज द नॉर्थ पोल, सो देन दिस इज साउथ पोल ओवर हियर. ओके, सो thus we have determined over here this direction of magnetic field. तो ये जो हमारे पास नॉर्थ पोल, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या करती है, साउथ से अंदर की तरफ जाती है और नॉर्थ से बाहर की तरफ आती है. दिस इज द दैट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो ये नॉर्थ से बाहर की तरफ और साउथ से अंदर की तरफ. सो एरोज आर गोइंग टू शो दिस magnetic field. Let us to draw the pattern of this magnetic field because of solenoid.
Okay, here you can observe that the current is going through these turns, and the current in every turn to the front side it is upward. Therefore, north pole is toward left and south pole is toward right side. Okay, and thus we are going to show the magnetic field line. The magnetic field line that enters in the south and leaves the north pole. Okay, and over here outside this that solenoid they goes back from north to south. ठीक है, तो जो सोलिनॉइड है उसके बाहर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, और इनसाइड जो थी ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं. सो दिस इज सेम एज दैट ऑफ अ बार मैग्नेट. तो जो एक बार मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ और साउथ है, तो ये भी सेम मैग्नेटिक फील्ड बनाता है. जिसमें साउथ से एंटर होती हैं तो वो हमारे पास नॉर्थ से बाहर चली जाती हैं, और दैट आउटसाइड द मैग्नेट ये इस तरह से एक सर्कुलर लूप बनाते हैं, क्लोज लूप बनाते हैं. ठीक है, सो दिस magnetic field of solenoid is same to it. Now over here that आउटसाइड द सोलिनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये वेरी वीक होती है. दैट्स वाई वी आर गोइंग टू कंसिडर इट इज एज टू बी जीरो. ठीक है, सोलिनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट जीरो होती है. ठीक है, तो इसलिए इसको जीरो कंसिडर किया जा रहा है. एंड दैट इनसाइड द सोलिनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म होती है. ठीक है, तो इसलिए इनसाइड द सोलिनॉइड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस मैग्नेटिक फील्ड that strength. Okay, so for this purpose let us to understand with this example. Let us to take over here this scale. It is the insulated material, and over it we are going to wrap the wire. So with the help of thread that I am going to wrap it. Okay, so here I have wrapped it. So there are the number of turns of that wire is going to form. Okay, now here that we are going to suppose that the current is going from this side. ठीक है, तो जो करंट है वो हमारे पास राइट साइड से जाता है. ठीक है, सो यू विल फाइंड दिस कर्व. ये जो हमारे पास वायर है इट इज़ कमिंग फ्रॉम द बैक साइड ऑफ दिस इंसुलेटेड मटेरियल. ठीक है, तो इसलिए ये जो करंट है जैसे ही अपवर्ड में जाता है तो ये इसके बैकवर्ड से यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर आता है. ठीक है, सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट एट दिस पॉइंट. सो दिस विल बी आउटवर्ड. किस तरफ हो रही है इसकी डायरेक्शन, हमारे तरफ. मतलब कि अगर आप टेंजेंट लोगे सो दिस विल बी टुवर्ड अस. ठीक है, तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो इस पॉइंट पर क्या है, आउटवर्ड है. ठीक है, एंड नाउ ये जो करंट है यहाँ से क्या करता है, फ्रंट से डाउनवर्ड में जाता है. जब डाउनवर्ड में जाएगा सो एट दिस पॉइंट, सो इस पॉइंट के ऊपर क्या हो जाता है हमारे पास, ये जो करंट है वो किस तरफ चला गया. नाउ इट इज़ गोइंग इन टू द प्लेन ऑफ पेपर. ठीक है, तो ये अंदर की तरफ जा रहा है. ठीक है, सो देयर फॉर दिस आई एम गोइंग टू शो विद दिस डायग्राम. ठीक है, तो ये मेरे पास जो सॉलिनॉइड है वो यहाँ पे ये शेप जैसी शो कर दी, और इस जगह पे जो करंट है वो क्या कर रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, एंड एट दिस पॉइंट ये जो करंट है वो इनवर्ड जा रहा है. ठीक है, तो आउटवर्ड करंट को डॉट से और इनवर्ड करंट को क्रॉस से शो कर दिया. ओके, so here that direction of magnetic field with the help of that ampere right hand rule we determined that कि जो करंट है यहाँ से बाहर की तरफ आ रहा है. सो इफ फिंगर टिप इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट सो थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड राइट साइड हो रही है. ठीक है, नाउ लेट अस टू कंसीडर कि इनसाइड ऑफ दिस देयर इज अ पॉइंट P where we want to find out this magnetic field due to of this solenoid. So for this purpose I am going to consider, let us to suppose that according to this ampere circuital law we have to take a closed loop which is known as amperian loop. So here I am going to consider this is rectangular closed loop. So here it is rectangular closed loop. So it is A, B, C, and there it is D. Okay, so this is that closed loop which I have considered. Now that you will find, let us to have this direction, it is to be anti-clockwise. तो ये हमारे पास जो डायरेक्शन है इसमें वो एंटी क्लॉकवाइज हमने सपोज कर ली इस लूप की. ठीक है, बट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज टुवर्ड राइट. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड राइट. ओके, सो नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ व्हाट इट सेज, so ampere circuital law says that this line integral of magnetic field on this closed loop v dot dl. Okay, so which is that closed loop, so we are having it is A B C D.
this is a closed loop, A B C D, A. Okay, so this is the closed loop. So that will be equal to mu naught times the current which is passing from inside the loop. Okay, so this is inside the closed loop. तो वो करंट जो उस क्लोज लूप के अंदर से पास करता है, ठीक है. सो दैट करंट वी हैव टू टेक ओवर हेयर. ओके, सो नाउ लेट अस लुक ओवर हेयर फर्स्ट द लेफ्ट साइड, देन वी विल फाइंड दिस राइट साइड की टोटल करंट उस लूप के अंदर से कितना जाता है, ठीक है. सो ओवर हेयर वी विल फाइंड कि ये जो हमारे पास नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है उस क्लोज लूप के अंदर, सो इट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ, it is the contribution, you will find that it is the contribution of AB जो हमारे पास, let us suppose the length of this one it is L, ठीक है. तो जो हमारे पास इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो L हमने कंसीडर कर लिया. तो AB वायर की लेंथ क्या बन गई, जो लूप है उसकी लेंथ क्या बन गई, L बन गई, ठीक है. सो नाउ ओवर हेयर ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी वजह से बन रही है, इस क्लोज लूप में. सो इट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट AB, जो ए बी साइड बन रही है उस लूप की, उसकी कंट्रीब्यूशन है, प्लस इट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट विच इज़ बी सी. सो इट इज़ बी सी एंड देर आफ्टर, बट डोंट टेक दैम एज अ क्लोज लूप बिकॉज दे आर ओनली द लाइन इंटीग्रल, दे आर ओनली द लाइन इंटीग्रल. ये क्लोज लूप था तो ये ओनली लाइन्स थी, ठीक है. तो जो हमारे पास लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस ए बी बी सी, and that next it is plus of CD. So line integral of that magnetic field along CD and plus DA, that magnetic field का line integral along this DA. ओके, सो दस भी कम टू नो ओवर है कि जो लूप के अंदर, जो लूप की हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो कंट्रीब्यूशन बन रही है लाइन इंटीग्रल ऑफ ए बी पार्ट, बी सी पार्ट, सी डी पार्ट एंड डी ए पार्ट. ओके, नाउ एज वी आर नोन कि ए बी की लेंथ, जो हमारे पास ए बी जो लेंथ है उसकी डायरेक्शन क्या है, राइट साइड, और जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो भी किस तरफ है, राइट साइड है, ठीक है. सो दैट वी कैन से ओवर हेयर कि जो हमारे पास यहाँ पर then this is the net magnetic field of the closed loop, it is equals to that of line integral of AB part. तो BDL cos of 0 डिग्री विल बी देयर. ओके, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, मैग्नेटिक ए बी पार्ट के लिए जो डायरेक्शन है लेंथ की और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास दोनों सेम है, ठीक है. तो इसलिए यहाँ पर एंगल 0 डिग्री बन गया, प्लस ओवर देयर. Now how much is the contribution of this BC part of that loop? So we will find कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, राइट साइड. लेकिन हमारे पास एलिमेंटल जो लेंथ है वो किस तरफ जा रही है, ये अपवर्ड जा रही है, यानी कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. तो दोनों के बीच का एंगल क्या बन गया, 90 डिग्री. सो दिस इज फॉर बी सी, इट इज़ गोइंग टू बी बी डी एल cos 90 डिग्री, it is cos 90 degree. Okay, now as it is already said कि outside the solenoid जो magnetic field होती है वो weak होती है. Okay, so therefore you will take this is that no contribution from that side, so it is plus 0. And again from D to A, so line integral of this magnetic field, so this you will find D to A, again it is VDL cos of half, but will be the angle. Now this is coming down, what the net magnetic field is toward right, तो इसलिए दोनों के बीच का एंगल क्या बन गया हमारे पास, वो बन गया this is of 90 degree. Okay, so thus we have this is as, now we get that this will become 0, this will become 0. So this magnetic field will be only due to that AB part, ठीक है. तो इसलिए हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड थी उस क्लोज लूप की, वो हमारे पास किसकी वजह से बन रही है, दिस विल बी द ओनली लाइन इंटीग्रल ऑफ दैट ए बी पार्ट. ओके, सो दस वी कैन से दिस वन दैट line integral of this closed loop it is equals to that only magnetic field along this AB part. Now here we have to check back what was that right hand side, ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड हमने अभी फाइंड आउट की, तो राइट हैंड साइड थी म्यू नॉट आई,
इनसाइड द करंट, जो करंट उस लूप के अंदर है, ठीक है। नाउ अवर ड्यूटी ओवर हेयर, अवर वर्क ओवर हेयर, कि हाउ मच इज द करंट विच इज पासिंग इनसाइड दिस लूप, इस लूप के अंदर से कितना करंट पास कर रहा है। ओके, सो फॉर दिस पर्पज वी आर सेइंग लेट अस टू टेक दैट लेट, एज ऑलरेडी सेड ओवर हेयर, लेंथ तो उस लूप की कितनी है हमारे पास, एल है, ठीक है। तो इस लूप के अंदर कितना करंट है, तो इसमें देखो आप कितने टर्न्स ऑफ द वायर जा रहे हैं, ठीक है। सो ओवर हेयर आई एम सपोजिंग दैट इट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन लूप। तो हमारे पास उस टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है मतलब कि वो कितने बन रहे हैं लूप के अंदर, लेट इट बी एन, ठीक है। सो एन लूप जो है वो किसके अंदर बन रहे हैं, कितनी है उसकी लेंथ हमारे पास इस कंडक्टर की, दिस इज ऑफ एल लेंथ, ठीक है। तो इसलिए एन नंबर ऑफ लूप जो है वो एल लेंथ में बनते हैं उस जो हमारे पास यहाँ पर एम्पीरियन सरफेस हमने कंसीडर किया है, ठीक है। सो दस वी कैन से ओवर हेयर इन यूनिट लेंथ हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर, तो जो नंबर ऑफ टर्न्स है वायर के वो कितने बन रहे हैं, कितने वायर के राउंड जो है उस यूनिट लेंथ के अंदर बन रहे हैं। सो दिस इज एन बाई एल, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास आए, एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ ऑफ वायर। Okay, this is over there. So now then we can say that this is the right side, right hand side मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। right hand side क्या बोला था हमने, this was म्यू नॉट, म्यू नॉट दैट करंट थ्रो, करंट इनसाइड, ठीक है। तो करंट इनसाइड की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास टोटल कितने यहाँ पर टर्न्स बन रहे थे उस एल लेंथ के अंदर, एन बन रहे थे, ठीक है। और एक टर्न से कितना करंट जा रहा था, आई करंट जा रहा था। सो दिस इट बिकम्स देन टोटल करंट इट इज एन आई, total current is Ni, or we can also write it as mu naught NL. From here you can see that how many total number of turns, so it is number of turn in unit length into total length, so it is NLI. Okay, this we can write over there as well. So now this was our left side and now it is going to be our right side. Okay, so therefore that line integral of magnetic field on that closed loop, it was equals to that of only the participation of that loop part which is along AB, and which was equal to mu naught NIL. Okay, this is over there. So finally that now magnetic field is constant there, B is taken out, and the integration of that length which is of AB loop, AB part of the loop, so which is equal to mu naught NIL. Okay, this will come over there. So now we finds that जो टोटल लेंथ है हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ ओनली ए बी लेंथ, तो टोटल लेंथ ए बी की कितनी थी, वो एल थी, ठीक है। तो दैट इम्प्लाइज बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई एल, एल एंड एल इज गोइंग टू कैंसिल एंड इट इज म्यू नॉट एन आई, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड विच इज इनसाइड ऑफ दैट सोलेनॉइड। तो ये सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास म्यू नॉट एन आई होती है, ठीक है। एन क्या था इसमें, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन लूप, ठीक है। वायर के कितने टर्न्स जो है उस लूप के अंदर आते हैं और उसकी यूनिट लेंथ में कितने बन रहे थे, तो वो एन बाई एल आते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये फार्मूला हमारे पास। सो वन थिंग दैट वी विल फाइंड, जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड दिस सोलेनॉइड वो कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है। सो वन थिंग दैट यू विल फाइंड, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट मीडियम, ठीक है, उस सोलेनॉइड के अंदर जो मीडियम हम यूज़ करते हैं। एंड सेकेंड थिंग दैट नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स इसके ऊपर होंगे उतने ज़्यादा ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। एंड थर्ड थिंग इज ओवर देयर दैट इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, तो जितना ज़्यादा करंट जाएगा उस सोलेनॉइड से उतनी ज़्यादा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करता है। नाउ ओवर हेयर इम्पोर्टेंट टू नोट दैट जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है उसको हम इनफाइनाइटली भी इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है।
तो इसलिए हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है एट द एंड्स ऑफ सोलिनॉइड, एंड्स ऑफ सोलिनॉइड, सो इट इज जस्ट हाफ दैट मैग्नेटिक फील्ड विच इज इनसाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है, दिस मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड्स इट इज इक्वल टू दैट हाफ ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड विच इज इनसाइड द सोलिनॉइड। ठीक है, ये उसके हाफ हो जाती है एंड्स के ऊपर। सो देन वेरिएशन इफ वी आर टॉकिंग ऑफ अबाउट, तो अगर हम वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट वी आर ऑब्जर्विंग, इट इज विद दैट विद द लेंथ। तो अगर हम लेंथ के साथ बात करें, सोलिनॉइड लेंथ के साथ बात करें कि कैसे वेरी करती है, सो फॉर दिस let us to take this is the length along and here it is the magnetic field. Magnetic field it is in this way and this is the length of that solenoid. So over here at the जो सेंटर है, सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट एन आई, बट एट द एंड्स वो क्या हो जाएगी, उसका हाफ हो जाएगी। तो इस टोटल का हाफ यहाँ जैसे, तो इसलिए इसका ये हाफ हो जाएगी एट द एंड्स के ऊपर। So over here this side I'm going to show this is that positive direction, here it is for negative direction and it is the center part. Okay, so this is the variation of magnetic field. Thanks for watching this video.